Hello, student of class 11 science. Now the part 2 of the mechanical properties of fluid. Now, this particular part we are going to discuss about the viscosity. Very important topic for the final exam. Try to understand. Just you see, I have taken a beaker and in this water I have taken and I am stirring it. What happens? Just you observe. After stirring for some time, I am stopping it. I am not going to stir again. Now just you see the particles of or the molecules of water. I have taken the translucent so that the particles can be visible, and slowly it stops. Slowly it stops. Why it stops? ये पानी अब रुक क्यों गया? हम तो इसको मोशन में लेके आए थे. पानी रुक क्यों गया? That's the question. Now, why water, the different layers of water stops? So definitely some force is there, some retarding force which acts against our motion. Definitely. Now the point is that first you have to understand the water column or the water inside the beaker is having a different layers. यहाँ पर different layers है पानी का. Different layers, infinite number of layers. So what happens? So definitely there is some kind of force amongst the layers, between the layers. कुछ force, definite retarding force है जो इसको रोका है, right? जिसको रोक दिया है. पूरा लेयर, अब देखिए पूरा लेयर धीरे धीरे शांत हो गया. अब ये जो प्रॉपर्टी है यही तो है रिटार्डिंग फोर्स, यही तो विस्कस फोर्स है. सो डिफरेंट लेयर्स में होता क्या है, यहाँ पर अगर हम डिफरेंट लेयर को कंसिडर करेंगे तो एक लेयर, उसके नीचे वाला लेयर, उसके नीचे लेयर, तो डिफरेंट लेयर जो है, नीचे वाला लेयर ऊपर वाला लेयर का को क्या ट्राई करता है, कोशिश करता है कि उसका स्पीड को हम कम कर दें, और ऊपर वाला लेयर कोशिश ये करता है कि हम उसका स्पीड को, उस लेयर के स्पीड को इंक्रीज कर दें. सो अल्टीमेटली रिटार्डिंग फोर्स लगता है. एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करता है, विस्कस फोर्स एक्ट करता है अमंग्स द लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. सो द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड और द फ्लूइड by virtue of which it opposes or a retarding force comes into play when the different layers of liquid or the fluid, whenever they are having a relative motion between the layers. This particular property is the viscosity. I am repeating the definition of the viscosity: the property of a liquid or fluid by virtue of which it opposes or retarding force comes into play when different layers of the fluid or the liquid, whenever they are having the relative motion between the layers. This is called the viscosity. ये viscosity. And the particular layer which is in contact with the bottom of the container is known as the fixed layer. Fixed layer. The speed or the velocity, speed in fact of the particular layer which is in contact is the zero or minimum. And this is the free layer. The topmost is your free layer. So free layer and the fixed layer. तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे उस लेयर का स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे लेयर के स्पीड या लेयर का स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होना. सबसे मैक्सिमम फ्री लेयर जो है उसका स्पीड सबसे मैक्सिमम होता है. ओके, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द विस्कोसिटी. पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर mechanical properties of fluid, that is viscosity, we are going to discuss. Now the coefficient of viscosity. What is the meaning of the coefficient of viscosity? Just you see, I have taken a beaker in which I have shown the different layers of water. Here this is a fixed layer,
is the free layer. Fixed layer means V is minimum, and free layer means V is maximum. Now this indicates the speed is maximum of this layer, and इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इस तरह से layers रहता है. And the viscous or retarding force between the different layers causes the viscosity. Okay. Now Isaac Newton has shown experimentally that the viscous drag among the different layers, that viscous drag, say F is a viscous drag. F is what? Viscous drag among the different layer is directly proportional to the area of the layer, area of that particular layer, and also directly proportional to the velocity gradient dv by dx. इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट. So therefore F is directly proportional to A dv by dx. Now if we are going to remove it, we have to multiply a constant. So here negative of eta, that is a constant, A dv by dx, where eta is the coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity, and A is the area of that layer, and dv by dx is your velocity gradient. Now why the negative sign is here? Negative sign for the direction of viscous drag in just opposite to the motion of the liquid. विस्कस ड्रैग का जो डायरेक्शन होता है, विस्कस ड्रैग F, उसका डायरेक्शन मोशन ऑफ लिक्विड के अगेंस्ट में होता है. दैट ओनली शोज, so that's why it is F is equal to minus eta A dv by dx. This eta we can write it, eta is equal to, if we are taking a mode, eta is equal to F by A dv by dx. So eta, the coefficient of viscosity, how we are going to define it? If velocity gradient dv by dx is equal to 1 and area of that layer is of 1 unit, that's the 1 unit, then eta is equal to viscous drag. That we can easily define it. How to define the coefficient of viscosity? Now, if anybody is going to ask, so what is the dimension of eta? We can easily find out the dimension of eta. That is m l minus 1 t minus 1. That we have discussed in the chapter 1. The unit, SI unit is m is there, kg, meter to the power minus 1, second to the power minus 1. That is the unit of coefficient of viscosity. Streamline and the turbulent flow. Streamline flow, when the flow of the fluid is such that the velocity of every particle of the fluid at any point is constant, then the flow is termed as streamline. Means क्या, फ्लो जो हो रहा है उसमें हर एक पॉइंट में पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. जैसे मान लेते हैं ये फ्लो हो रहा है और हम यहाँ बीच में एक पर्टिकुलर पार्ट ले लिए, यहाँ से यहाँ ये पाइप से फ्लो हो रहा है, पाइप से ऐसे करके फ्लो हो रहा है लिक्विड का.
यहाँ पर हम एक पॉइंट लिए ए, यहाँ दूसरा पॉइंट लिए बी, यहाँ तीसरा पॉइंट लिए सी। ए में ए पोजीशन पर जो पार्टिकल है इसका वाटर का, उसका डायरेक्शन ये है मान लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। अगर हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट सी, द मोड वी आर टेकिंग, सबका स्पीड अगर सेम है, सबका वेलोसिटी अगर सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। हम मोड ले रहे हैं केवल, स्पीड इज सेम हर एक पॉइंट पर। इस तरह से हम बहुत सारा पॉइंट ले सकते हैं। सब पॉइंट पर पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर जो है उसका स्पीड सेम होगा। अगर किसी फ्लो में सेम नहीं है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल क्रॉसिंग ए गिवन पॉइंट इज नॉट सेम, then the motion of the fluid becomes irregular or disordered, then flow is termed as turbulent. अगर नहीं है वेलोसिटी ए पॉइंट का नहीं इक्वल है बी के, नहीं इक्वल है सी के, वेलोसिटी अलग अलग है, तब हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट। ये हो जाएगा टर्बुलेंट। दो तरह का फ्लो, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। Ideal fluid, another topic is your ideal fluid. The meaning should be clear. Ideal fluid किसको बोलेंगे? ऐसा fluid जो SIIN, S क्या? S stand for streamline, I incompressible, another I irrotational, and non-viscous. ऐसा फ्लो जो स्ट्रीमलाइन है, इनकम्प्रेसिबल है, इरोटेशनल है एंड नॉन विस्कस है। ये अगर ऐसा फ्लो है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड। ठीक है, दैट इज योर आइडियल फ्लूइड। नाउ कम्स to the very important equation of continuity. Equation of continuity. अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये क्या एक्सप्रेस करता है? इट expresses the law of conservation of mass. Conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये उसको एक्सप्रेस करता है। कौन? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके लिए हमको क्या इक्वेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द डायग्राम। इस तरह से एक क्रॉस सेक्शन पाइप है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका अलग अलग है। डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया लिए हैं। एक पाइप है जिससे क्या फ्लो हो रहा है? फ्लूइड या लिक्विड। ये ऐसे करके फ्लो हो रहा है। ये सेक्शन ए है पाइप का, ये सेक्शन बी। इंटरेस्टिंग। ए सेक्शन में जो पानी हम ले लिए हैं, मान लेते हैं लिक्विड लिए हैं, कोई भी लिक्विड या फ्लूइड, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, स्मॉल ए से लिख रहे हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल A1। जिस स्पीड से ये जो इन कर रहा है कौन? फ्लूइड, उसका स्पीड है V1। और जिस स्पीड से ये जो लिक्विड या फ्लूइड जो जा रहा है उसका डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं ρ1। हम यहाँ पर ए सेक्शन में ऐसा ले लिए हैं A1 V1 ρ1। A1 क्या हुआ? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। V1 क्या हुआ? जिस स्पीड से फ्लूइड अंदर जा रहा है। ρ1 क्या है? इस केस में यहाँ पर जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी। सिमिलरली बी पॉइंट पर भी हम लोग A2
A2 is the area of cross section at point at section A. Section B, A2, V2 जिस स्पीड से ये बाहर निकल रहा है, और रो टू क्या है? द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच कम्स आउट. ये हम लोग एज्यूम कर लिए. अब हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by liquid in del T time at A, सेक्शन A पर del T टाइम में कितना आगे बढ़ा, डिस्टेंस कितना आगे बढ़ा. तो क्या हो जाएगा, स्पीड, यहाँ सेक्शन A में स्पीड कितना था, v1 इंटू del T. राइट. नाउ ये आ गया डिस्टेंस. सो मास ऑफ द लिक्विड और द फ्लूइड क्रॉसिंग द एरिया A1 में जो एरिया ये क्या है, A1 एरिया में कितना मास इन किया del T टाइम में, इन del T टाइम एट A कितना मास इन किया है. तो मास निकालने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, ये मास को हम लोग del m1 से डिनोट कर रहे हैं. सेक्शन A में कितना मास इन किया del T टाइम में, तो del मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है. वॉल्यूम मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब सेक्शन A पर है इसीलिए A1. वॉल्यूम मीन्स एरिया इंटू दैट डिस्टेंस. डेल डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस इज योर v1 del T, अभी निकाले थे ये डिस्टेंस, इंटू रो1 डेंसिटी इज इक्वल टू del m1. ये del T को इधर कर दिए तो del T इज इक्वल टू A1 v1 रो1. इस क्वांटिटी को, ये जो del m1 बाई del T आया, इसको बोलते हैं मास फ्लक्स. क्या बोलते हैं, मास फ्लक्स. नाउ वी गॉट, इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली 1 बाई del T का मास फ्लक्स कहाँ पर, एट A. सिमिलरली एट B सेक्शन पर मास फ्लक्स कितना हो जाएगा, del m2 बाई del T. इसका वैल्यू कितना आ जाएगा. सिमिलरली A1 v1 A2 v2 इंटू रो 2, A2 v2 इंटू रो 2. इक्वेशन नंबर 2. ये कौन सा, सेक्शन B पर. एज देयर इज नो सोर्स और सिंक. यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर कोई सोर्स, यहाँ इस पाइप में ना कोई सोर्स है, न बाहर निकलने का कोई ओपनिंग है. तो टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट एज देयर इज नो सोर्स और सिंक. सो मास फ्लक्स एट A should be equal to mass flux at B. दोनों को हम इक्वेट कर दिए. A1 V1 रो 1 इज इक्वल टू A2 V2 रो 2. दोनों का वैल्यू कितना आता है, ऐसा del m बाई del T आया था.
m1 इसके लिए, डेल टी ये फर्स्ट सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए। तो ये टोटल, अगर इफ़ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं रो वन जो है, दोनों का डेंसिटी सेक्शन ए और सेक्शन बी का दोनों सेम होगा, दैट इज इक्वल टू रो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? दैट इक्वेशन बिकम्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दो सेक्शन था इसीलिए A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आया। A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। V क्या है? वेलोसिटी। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।